Alexa, cancel repeat. Aradhya, Sindhwas, Meet, Rishabh Bansal, Yasin, Mahima, how you doing? Sid, Mahima, Yasin, how you doing, guys? I'm sorry I can't take you guys live because we're live with somebody else today, and I think you guys already know who that amazing person is, and I'm so excited. Nilesh, how you doing? Rich333 official, hello. Purvai Jain, hey buddy. Kunal, Priya, Vinay, Chauhan, how you doing? Dheeraj, how you doing? Hiral, Ayan, Prashant, how you doing? Welcome, welcome. I'm so glad that you took out some time to come and join me. He's here, guys. He's here. All right, let me just send him a request right. Today, I'm really excited about this, okay? I didn't even get time to kind of get into the video. Hey! Ritesh! How you doing? I'm good, man. Look at you. Look at एकदम you. दाढ़ी वाड़ी बना के रेडी है तू? हाँ? दाढ़ी निकलती नहीं है बनाने के लिए. But the actor in you will never die. क्यों lighting के लिए अच्छा ले लिया. Half lit face, सब बराबर. I'll show you where I am. There is really no lighting. Lucky enough that there's a window right next to me. Wow. And it's a part of the house. So I just put it up and technology does the rest. I'm having a lovely green tea. And so Vishal has actually pulled me out of my time with my children. Cheers, cheers, buddy. Cheers, Rich. Cheers, cheers. So good to see you, yaar. And I want to say thank you too. Before you said that, thank you so much. I know that I've pulled you away from the most important thing in all our lives. Yeah. And I really appreciate it. मैं सबको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आप और मैं नहीं, लेकिन रितेश देशमुख भी घर का काम कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर पे कटका वगैरह भी करते हैं, मैंने सुना है. इंस्टा लाइव पे से बोल मत, मैं फोटो भेज दूंगा बाद में. हाँ प्लीज, वो मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा. नहीं प्लीज, नहीं क्या, नहीं मुझे लगता है कि क्या होता है जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो पहले लगा कि बिकॉज ऑफ सच अ लाइफ चेंजिंग थिंग कि हमको पता नहीं था कि किस दौर से हमको गुजरना है, क्या क्या करना है. पर हम इंसानों में एक खासियत ये भी है कि वी अडेप्ट, वी आर अ स्पीशीज दैट अडेप्ट्स वेरी क्विकली. तो हमको पता है कि अभी किस तरह हमको अडेप्ट करना है, हाउ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कैसी करनी है, किस तरह हाथ धोने हैं. आई थिंक इट्स अ ग्रेट लेसन फॉर किड्स एट, I mean, Vishal, your child and my child are almost similar age group. और इस उम्र से ही अगर उनको पता है कि कितना जरूरी है हाथ धोने और साफ सफाई रखना, so it's important to teach them. So I think it's a great time also. No, absolutely. Yeah. So I was just saying that I know that एक अच्छी बात इससे ये है कि हम सबको बहुत मौका मिल रहा है हमारे बच्चों के साथ और हमारे फैमिली के साथ थोड़ा सा वक्त बिताने का, which is amazing. And I know how busy you've been in the last, I don't know, 4-5 years. Firstly, kudos on everything that you've achieved. I really admire everything that you do. No, that's very sweet of you. No, really, man. So, Rich, seriously, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. If you don't mind, I think we'll speak in Hindi because a lot of your fans are here, and a lot of them have been requesting that we speak in Hindi. No. विशाल, ये सब आपके फैंस हैं और I think उनको मिलना मेरा सौभाग्य है. So I'm very excited. मैं बहुत उतावला हूँ उनसे बात करने के लिए. ये देखिए उनके मुंह पर जो स्मर्क है, जो नोटी सी स्मर्क आपको दिखाई दे रही है, वो इन्होंने मेरी खींचनी शुरू कर दी है. But you owe me a phone because ever since आपने वो पोस्ट डाला है आपके स्टोरी पर, मेरा जो फोन है वो मैसेजेस से मतलब उड़ गया है. तो इस टाइम लॉकडाउन पर मेरे पास फोन नहीं है,
तो मैं अपनी बीवी का फोन यूज कर रहा हूँ. Luckily we had ones available. So these are No, all that's your wonderful. but But लेकिन अपना फोन बीवी को देना 2 बार सोचना. no! No. नहीं! Ritesh, मैं आपको बताना चाहता हूँ. I'd like to tell you as to why I'm doing this. I mean, if that's जी. okay with you. Yeah, please, of Besides, course, please share. besides the fact that you know it's a nice connect and all that stuff, I have been very very fortunate to be a working actor for quite a while in films and in television and just working. I feel immense gratitude and I feel so good about it. और उस journey में, उस रास्ते में, I have really had the pleasure of meeting so many amazingly outstanding people, and I'm sure you have also. But I wanted you to know this in front of the whole world, that you know, you're way top there in the list. Hi. And I wanted to say thank you for being in my life and letting me be a part of your life. You've really created a huge impact in a very positive manner in my life, and I know that we don't meet enough as much as I'd love to. You know, हम सब अपनी जिंदगी में बहुत बिजी रहते हैं, और ये जो लॉकडाउन है हमें एक वेरी रूड रिमाइंडर, एक कठोर रिमाइंडर हमें दिया है कि प्रायोरिटीज क्या होते हैं जिंदगी में. So anyways, I just wanted to say this to you that you know, I adore you as a person more than anything else, and you've been a very positive influence in my life, and thank you for letting me be in your life. That's one No, of my Vishal, okay, since you seriously. said all these things, like this, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि you know, विशाल और मैंने एक फिल्म की थी जाने कहाँ से आई है, और उस वक्त you know, मुझे लगता है 10 साल हो गए उस फिल्म को almost, और it is one of the most amazing time on sets to have विशाल improvise. और क्या होता है कि मैं बताना चाहता हूँ खासकर लोगों को, जब भी एक सीन होता है, 4 लोग होते हैं या 3 लोग होते हैं या 5 लोग होते हैं, अकेले जो भी सीन में हीरो सीन होता है, इट्स नॉट कोई एक्टर सीन होता है. और मुझे याद है जब भी बहुत सारे सीन्स ऐसे थे, एक खासकर उस फिल्म का सीन मुझे याद है कि जैकलीन एक एलियन है, और वो धरती पर आती है, और उससे मैं अपने रूम में छुपाता हूँ, और मेरा एक ही दोस्त है विशाल जिसको मैं बताना चाहता हूँ कि ये एलियन है. और सो नाउ तो वो पूछती है कि प्यार कैसे होता है, तो मैं कहता हूँ कि दिल का मिलन जब दिल से होता है तो उसे प्यार कहते हैं. सो शी कम्स एंड हग्स मी, तो मैं कहता हूँ नहीं ऐसे नहीं होता है. एंड कट टू विशाल जो पीछे खड़ा है ऐसे, ट्राई हियर, ट्राई मी. The way he did that scene was so amazing. मैं हंस के गिर गया था उस दिन, क्योंकि क्या होता है कि हालांकि एक ही लाइन है, लेकिन एक एक्टर जब पूरा सीन खींच के लेके जाता है, पूरा अटेंशन, and that is the beauty of Vishal as an actor, कि his comic timing is fantastic. वो अपने को एक्टर को स्पेस देते हैं, कभी हावी होने की कोशिश नहीं करते, और so that was just wonderful to act with Vishal. You're just too kind, because you know, सब जानते हैं और मैं भी जानता था कि you know, this is not okay. By the way, I know this is coming across as you scratch my back, I scratch your back, but I believe in the genuinity of this conversation also. And Ritesh, you are one of the finest actors in cinema, and I mean it. And I know it's a very big thing to say, and coming from me, but I just want to say that your timing and your understanding of life is so incredible that it's not only in the comedy. Everybody knows how brilliant you are. You are the finest Indian actor when it comes to comedy. There's no doubt about it in my eyes. Lekin if I see you, like I recently saw Baagi. मैं ये कन्फेस करता हूँ कि अभी OTT प्लेटफॉर्म में अभी ही रिलीज हुई है. जिसने नहीं देखी है बागी 3, प्लीज जाकर देखिएगा. And I saw it and I was so taken aback by you. I have a confession to tell you, Ritesh, कि जब मैंने ट्रेलर देखे फिल्म के, तो मैंने बोला यार रितेश ये क्यों कर रहा है? Why is he doing this? Because ट्रेलर में ऐसे समझ में नहीं आता है कि a person of your caliber and your achievements has agreed to do a part which seemed तो बहुत ही अलग. जब आप फिल्म देखोगे, you've really taken the bloody cake, man.
Oof, Perfect. I'm getting goosebumps right now. And Thank you, sir. you know my wife, Rashi. She's not one of those people who watches the action films and all that stuff. So she, we got glued to this. So you're just fab, yeah. And No, I बात just अगर- no, really. And talking thank about, you. sorry, I'll just keep quiet. We'll continue this. I don't want to kind of keep. यहाँ पर लोग आपसे सुनने के लिए आए हैं. नहीं, आप बताओ. You want to ask me questions? How do we take this ahead? Why don't you tell me what is one exciting thing that you have done? आपने क्या किया इस लॉकडाउन में? ऐसी एक exciting चीज किया यार, ये करने में बहुत मजा आया. Yeah, it's so nice of you to ask, Rich, but I have been really, मेरे जो bucket list बहुत थे creativeness की, वो मैं बहुत भरपूर से कर रहा हूँ. जैसे कि ये live chat. I mean, so many lovely people have just readily agreed like you did. You are here. Imran Hashmi was here day before. Vidya Balan was here a few days ago. Baman Irani, your very close friend, is coming in tomorrow. But you know why this is happening? It's Because- all because of you. Because of you, the connection that you have with all of us makes it so more special that Thank you. that we want to do this. And I have to confess that one usually वक्त नहीं मिलता लाइव चैट करने का. और क्या होता है कि ऐसे जब अकेले जब लाइव चैट करते हो तो इट्स जस्ट लाइक आप टेलीविजन देख रहे हो. मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ. पर जब आप किसी और के साथ करते हो तो इट्स लाइक अ कॉन्वर्सेशन. तो बिल्कुल. तो ये देखने को मिलता है ये दो लोगों के बीच में कनेक्शन क्या है, केमिस्ट्री क्या है, उनका इक्वेशन क्या है. और आई गेट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट टू कैन यू कम ऑन दिस वीडियो, कैन यू डू ऑन फेसबुक एंड आई अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाता करने के लिए. एंड आई हैव टू कन्फेस कि मैंने 2 बार विशाल का डेट मैंने चेंज की क्योंकि आई हैड सम क्लास विद माय चाइल्ड. और विशाल यूजुअली वांट्स इट एट 7:30 पर 7:30 बजे मैं बच्चों को सुलाता हूँ. तो आई सेड विशाल आई वोंट बी एबल टू डू इट. मैं दोपहर को 12 बजे करने वाला था पर विशाल सेड इट्स बेटर इफ यू डू इट क्लोज टू 5 o'clock. So I said चलो 4:30 से 5:30 ऐसा कुछ हम लोग कर लेते. तो No, I'm so glad, and I understand. I mean, I understand कि you're busy, but that's what's amazing is that's we और ये conversation मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके और मेरे बीच में एक conversation है. ये कोई ज्ञान हम नहीं बांट रहे हैं. I mean, हम कौन होते हैं ज्ञान बांटने के? लेकिन ये टाइम जो है, ये माहौल जो है, वो इतना स्ट्रेसफुल है कि यार समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. तो इस 1 घंटे में रितेश देशमुख के फैंस रितेश देशमुख को देखकर अगर किसी के जहन में, दिल में, दिमाग में कुछ खुशी आ जाए तो ये तो बहुत बहुत अच्छी चीज हो गई यार. सो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस यार रितेश. तो यू नो व्हाट, मुझे लगता है 1 महीना ऑलमोस्ट 2 महीने हो रहे ये सब हम लोग लॉकडाउन में है. और बहुत सारी बातें हमने की कि किस तरह हमको सेफ रहना चाहिए. अभी तक बहुत सारी जगह रेड जोन में है. हालांकि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके 10 दिन पहले मैं मुंबई में नहीं था. तो मैं पूरे परिवार के साथ आई वाज आउट ऑफ मुंबई. सो मैं मुंबई 2 महीने से गया नहीं हूँ. अच्छा, तो आप इस वक्त मुंबई में नहीं हो? नहीं, आई मीन आई एम होम टाउन लातूर. अच्छा. नो, आई वाज वंडरिंग क्योंकि मैं आपके इंस्टाग्राम के पोस्ट देख रहा था और उसमें एक्चुअली बाय द वे आई एम सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया है. आई हैव टू टेल यू दैट आई क्रैक अप एट योर टिकटॉक वीडियोस. Oh my God! I know. Normally हम सब embarrassed होते हैं इसके बारे में, but it is so needed. इस वक्त पर it is so needed यार. And oh my God! You know what? Go. No, मैं भी inspire हो रहा हूँ. नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ना कि बहुत बार बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अगर उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्चुअली. क्या होता है कि हाउ डू आई व्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. बहुत सारे क्या कहते हैं हम लोग अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं. हम लोग ट्विटर यूज करते हैं. तो मेरा ट्विटर का रिश्ता यही है कि अपने देश में क्या हो रहा है, कुछ अनाउंसमेंट आ रही है देश के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, या बहुत सारे टॉपिक्स है जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ. बहुत सारे लोग हैं जो कहना चाहते हैं वो मैं पढ़ना चाहता हूँ. तो इट्स अ लॉट अबाउट थोड़ा उसे एक क्या कहते हैं, एक सीरियस ऑफिशियल उसको एक दर्जा है in terms of Twitter, and I take it that when I really enjoy interacting with all of them. Instagram is slightly more easy, जहाँ पर आप फोटोग्राफ डालते हो, जहाँ पर आप
फैमिली के साथ कुछ चीजें हो रही है, थोड़ा छोटा वीडियो डाल दिया. सो दिस इज ऑलमोस्ट शेयरिंग अ ग्लिम्स ऑफ योर लाइफ. बट Yeah, जहां पर टिकटॉक आता है, it's fun, it's crazy, and I just find it so entertaining. मुझे लगता है you're कि so good, यार. You are no so यार, good. there's It's so so many. much fun. मतलब आंखों से मतलब आंसू आ रहे थे. Okay, by the way, I want to tell you, how can we have this conversation, you and me, without mentioning Milap Bhai Zaveri? कुट्टू So Milap was also here. अच्छा, मैं चाहता हूँ जितने भी लोग ये देख रहे हैं, ओके, मिलाप जवेरी इंस्टाग्राम पर भी है, और मिलाप TikTok जवेरी पर भी है. ट्विटर पे भी है. अगर आप ट्विटर पे हो और अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, प्लीज उनको टैग करिए और सिर्फ यही कहिए. हम दोनों एक साथ कहेंगे 1 2 3, कुट्टू. It is CUTTUUUUUUUUU. यूं ही आप इंस्टा पे उनको टैग करो या ट्विटर पे डाल दो यार. So What मिलाप about- जवेरी, of course, सब जानते हैं, अभी बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए हैं, लेकिन वो उनकी जो पहली फिल्म थी, फीचर फिल्म थी, उसमें रितेश देशमुख थे, जैकलीन थी, और उसमें मैं भी था. उसका नाम था जाने कहां से आई है, और वो डायरेक्टर थे उस फिल्म के. और जब कॉन्वर्सेशन के शुरुआत में रितेश ने जाने कहां से आई की बात की, दैट वाज द सेम फिल्म. सो या. Yeah, and he's such a wonderful person, और it's a pleasure working with him on the set. क्या होता है कि सेट का माहौल ना एक हल्का फुल्का रखना, एंड ऑब्वियसली क्योंकि मिलाप के साथ मैंने बहुत सारा काम किया है, मस्ती हो या हाउसफुल हो, एक विलन, मरजावा उन्होंने फिर से डायरेक्ट किया, जिससे काम किया, जाने कहां से आई है. So I have known him for many years. He's one of my closest friends, and so myself, Vishal, and Milap have spent many evenings in Karjat. और क्या था उस वक्त, विशाल बहुत बिजी थे. हम लोग अच्छा. नाइट शूट करते थे, और विशाल सुबह ड्राइव करके मुंबई जाते थे, और दूसरे दिन वापस आते थे शूट करने के लिए. So he was a very busy actor during these days. And as soon as I used to come back, Ritesh used to sing a song. Very ham. He used to look at me and he said, "तुझे मेरा अब दिखता है, जरा मैं क्या करूं." What amazing times, यार. I mean, उसके बाद भी. So again, man, I mean, I've gotten into a habit of really not stopping myself from saying thank you. और ये आदत, and I, thank you, man. You're just just to understand. But Vishal, tell me one thing. Have you thought about directing? Because I know you're a good writer. Can I tell you something? Yeah. I'm sorry if I didn't mean to be opportunist about this, but since you're asking, I'd like to kind of tell you about something. You'd asked me what I've been up to in this lockdown. Yeah. So, I've always been fond of writing and kind of creating and doing those kind of things, as you know. So I made a show called, a 1-minute snippet called Waqt. Time. Okay. Waqt. Wow. And I discovered how to do a double role in my edit. I have set up a little edit software on my computer. And I made, it's basically about ये कहानी, in fact, it's little snippets about आप क्यों procrastinate करते हो, क्यों बोलते हो कि मैं ये दोस्त को, हाँ ठीक है यार, अगले हफ्ते फोन कर लूंगा, मैं बिजी हूँ, इसी वक्त करो. It's a small little thing. I'll send it to you. I'd love to know what you think about it. आपने पोस्ट किया ये? हाँ, मैंने पोस्ट किया, मेरे Instagram पर है. Sorry, I missed it. No, yeah. But anyways, I didn't mean to go into that entire thing. But now, Ritesh, I want to can I offer you guys some mangoes? Oh यार, फार्म से है. ओए. अरे आंबे खायचेत का कोणाला? एकदम. Okay. Yeah. We're live. हजारों लोग देख रहे हैं. Okay, I want to give this a little talk about something. Yeah. Ritesh, everybody looks at people's successes. और जब खुद की failure होती है, आम इंसान की failure होती है, तो it sometimes becomes very difficult, especially in times like this, to deal with it. Now,
if you don't mind, I'd like to talk about those moments in your life. क्योंकि सबके, आप चाहे बिल गेट्स हो, अमिताभ बच्चन जी हो, रितेश देशमुख हो, विशाल मल्होत्रा हो, जो भी आप हो, आपकी जिंदगी में अप्स भी होंगे और डाउन्स भी होंगे. अप्स के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन a person, a human being as successful as a Ritesh Deshmukh also, I believe, must have had some downs in his life. Yeah, many times. क्या होता है कि if you don't mind, I'd like to kind Yeah. of scratch on that, because this has been something which is really hitting the spot with a lot of the people who are watching these slaves. Like, how does a person like a Ritesh Deshmukh, who the whole world looks as a successful actor, as a successful producer, as a, you know, a personal, happy, successful person, does he also have bad times and failures, and how does he deal with it? If you don't mind going into that space. I'll tell you. हिंदी में करते हैं, सॉरी. जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि सक्सेस और फेलियर ना, बिकॉज एक तो मेरा जन्म एक पॉलिटिकल फैमिली में हुआ है. दैट्स माय फादर देयर, यू कैन सी इट. विलासराव देशमुख, जिन्हें पता नहीं है, ही वाज द चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र ट्वाइस, और वो बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस रहे हैं. आज भी लोग उन्हें मानते हैं और उनकी वजह से मुझे काफी आज भी रिस्पेक्ट मिलती है. तो जब आप एक पॉलिटिकल परिवार से आते हो तो आपको पता होता है कि जीत क्या होती है, हार क्या होता है, इलेक्शन में हारना कब कब पड़ता है, हार कैसे होती है. फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आपको आपके ओहदे पोजीशन से आपको रिजाइन करना पड़ता है. सो ये जो टर्मोइल्स होती है वो मेरे करियर से बहुत बड़ी थी. तब you got to see him as a man and learn a lot how to face failures. So one thing I learned from my father was his walk. Whether he was a chief minister, or whether he was a person without a post, or whether he was a person who has just lost his election, his walk never changed. Wow. Yeah. And that is very important because he walked like that irrespective. So he walked as Vilasrav Deshmukh. He didn't walk as Chief Minister Vilasrav Deshmukh. He didn't walk as ex-minister Vilasrav. He just walked as this person. So what that says is that you shouldn't burden yourself with the position of power, and उसका क्या होता है, आपके ऊपर उसका प्रभाव ज्यादा नहीं होना चाहिए. बिकॉज उन्होंने कहा था कि ये कुर्सी, ये सीएम की कुर्सी, ये यही रहेगी, हम बदलते रहेंगे. ये कुर्सी आप अपने साथ लेके नहीं जा सकते, क्योंकि ये कुर्सी लोगों की, लोग डिसाइड करते हैं यहाँ पर कौन बैठेगा. एंड दैट इज समथिंग दैट आई लर्न. जब फिल्मों की बात आती है तो क्या होता है कि सक्सेस फेलियर ये होता रहता है. बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक चीज चल जाती है तो आपको लगता है ये ऐसी कैसे चल गई, मुझे पता ही नहीं था कि. सो मेरे करियर में जब इनिशियल मुझे सक्सेस मिला, मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता. आई विश कि आज की जनरेशन जिस तरह अपने करियर को देखती है, अपने करियर को देखा होता तो शायद बात कुछ और होती, या मैं किसी और, मेरे चॉइसेस बदल जाते शायद. But I don't regret whatever choices I made, because I have had the most wonderful time. I have acted with almost every actor that I dreamt of acting with. तो मैं अगर अपने करियर को देखूं तो sorry, I'm going to pause you for 1 second just for that point. I have to tell everybody out here a very open secret Ritesh Deshmukh के बारे में. He is single-handedly the most loved and the most non-controversial actor in this film industry. I have never had anybody say one word. और मैं आपको बता दूं, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हमारी दुनिया में ही आदत है, इंसानी आदत है कि लोगों की बुराई करना एक नेचुरल सी बात होती है. It comes naturally to a lot of individuals. But I just want to say something to everybody that you know this about yourself. I mean, Ritesh, I know that you know this, and it comes naturally to you. No, क्या होता है कि whenever I look at working with people, I want to enjoy my work. So I make sure that मैं किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं हूँ सेट पर. I want to enjoy. I want the best out of that person. I want to give my best. चाहे वो स्क्रीन पर हो या चाहे ऑफ स्क्रीन पर हो. तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी होता है. इसलिए जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है, चाहे आप हो या मिलाप है, जैकलीन है,
या अभिषेक बच्चन, बमन अभिषेक ईरानी, बच्चन, बमन ईरानी, अमिताभ बच्चन, so many अमित जी times. के साथ 3 Oh पिक्चरें my की, God, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, my ऋषि God. कपूर साहब, मिथुन दा, many legendary actors that I've worked with. The beauty of it is that you just, क्या है कि दो चीजें होती है, एक अपने अंदर के फैन को कभी मरने मत देना। हाँ, जब अरे एक्टर, हाँ, अगर आप एक एक्टर के फैन हो और आपको अगर मौका मिलता है कि आप कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हो एक फ्रेम में, बहुत बड़ी तो बात है, आप, भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप अमित बिल्कुल। जी के सामने खड़े हो, आप ऋषि कपूर, मिथुन दा के सामने खड़े हो, जग्गू दा के सामने खड़े हो, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हो, दे थिंक ऑफ यू एज अ कलीग। ये गो है। You'll find this very weird, but I felt that way when I was working with you in Jaane Kahan Se Aaye. No, 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 that, you're that being too yeah, kind. I hope you believe everything that I'm saying, because really See, there's an immense I'll respect tell you, for the I will tell you, Vishal, you and me are always colleagues. We'll always be equals as people, as actors, and whatever. But it's important to have the sense of respect कि आपको एक दूसरे बिल्कुल। के प्रति वो आदर रखना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा कहता हूँ, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, लोग थोड़ा टॉपिक डाइग्रेस होगा, लेकिन मैं एक नहीं, गो बताना चाहता हूँ कि बहुत बार मुझे सवाल पूछे जाते हैं कि मल्टी स्टारर आप करते हो, सो हाउ इज इट इजी टू डू कॉमेडी विद सो मेनी एक्टर्स, या जाने कहाँ से आई ऐसे फिल्म करना आसान है, या एक विलन या मर जाओ जैसे विलन करना आसान है, या लयभारी में जो हीरो किया है वैसा कमर्शियल एक्शन हीरो करना आसान है। या आसान और मुश्किल हर फिल्म होती है। हर फिल्म, मुश्किल फिल्म आपको आसानी से हो जाएगा, या कोई भी आसान फिल्म में कुछ दिन मुश्किल हो सकते हैं सीन करने के लिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब एक मल्टी स्टारर आप करते हो एक फ्रेम में, अगर आपके पास बॉबी देओल, अक्षय कुमार खड़े हैं, या अभिषेक अक्षय कुमार है, मिथुन दा ऋषि कपूर साहब के साथ, या फिर एक फिल्म में अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर साहब, अरशद जावेद, ये सब टोटल धमाल की फिल्म। तो ब्यूटी ऑफ मल्टी स्टार इज, फर्स्ट यू डोंट हैव टू बी इनसिक्योर। जिस दिन आप इनसिक्योर हो तो आप प्लीज मल्टी स्टार एक्टर ना बने, बिकॉज क्या होगा, आप सीन में अगर अपने बारे में सोचते रहेंगे ना, फिर सीन फनी नहीं रहेगा, वो सीन की बात नहीं आएगी। जब भी एक सीन लिखा जाता है, जब लोग 6-7 एक्टर को कास्ट करते हैं, तो हर एक एक्टर की एक पोजीशन होती है, एंड एज एन एक्टर यू शुड बी as you गिविंग, said, the scene is the hero. द सीन इज ज़ीरो, यू हैव टू बी गिविंग। Yeah, तो अगर मैं सीन कर रहा हूं, तो हर एक एक्टर का एक पंच आता है जो उसका होता है, और दूसरे एक्टर को सपोर्ट करना पड़ता है। वी कम अक्रॉस एक्टर्स जो शायद कभी कभी कुछ ऐसा करते हैं जिसके वजह से वो सीन का पंच कम पड़ जाता आपके है, पास लेकिन इवेंचुअली फिल्म को इफेक्ट कर जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, I would like to sorry, I'm interrupting you, may I for a second? Just थोड़ा, जो आप कह रहे हैं, मैं वो सारी चीजें जो है वो पर्सनल एनेक्डोट्स के साथ उसे काइंड ऑफ रीइटरेट करना चाहता हूँ। हमने तो, I don't know why, I don't know why firstly, I mean I wish I get to do a lot more work with you, but we've only done one film together, जाने कहाँ से आई, and I have to tell you कि जो भी scenes होते थे, this I'm telling everybody out there, of course the leading protagonist of the film was Ritesh Deshmukh in that film, and there were scenes where there were actually lines where Ritesh used to tell Milap, no, you know what, why don't we do this in such a way that I won't say this and Vishal would say this, and then and in certain scenes I was a little surprised because the punch of that scene then would shift to me. So you're a very giving actor, and it's not कि आप कुछ दान कर रहे हो, ये नहीं है, you know, and you're intelligent enough कि the scene will work better if you play it that way. So you're looking at the whole picture. So I just wanted to remind you that you've done this and I really learned a lot. फिर उसके बाद मैंने काफी films किए ऐसे actors के साथ. You spoiled me, by the way, Ritesh, because No. not everybody was that giving, if you know what I mean. Can we name पोर्टेबल चार्जर? पोर्टेबल चार्जर, बिकॉज मुझे लगता है मेरा कहीं बैटरी ड्रेन आउट हो गया।
हाँ, और आपका Anyway, नेटवर्क that इतना was तगड़ा नहीं है। हाँ नहीं लातूर में थोड़ा it's coming and going so वो trying my मिलाप best. जी आ गए, वो मिलाप मिलाप जी है आ गए। मिस यू सेठी। कुट्टू गुड्डू! but Milap has lost 6 kgs. What are you saying? Really? Yeah, he has lost 6 kgs and is not showing at all. I didn't want to say it, but I just said that he was looking great यार। ये जो चैट हो रही थी वो बहुत हाँ ही सेक्सी लग रहे थे। अच्छा हाँ, फिट होते विशाल, फ्रेम में what do you use to keep your हाँ विशाल, अच्छा हाँ, ये तो स्टार्ट what कर लिया इन्होंने। अच्छा क्या क्या 11 बोल रहे हैं, 11 kgs is lost। he's lost 11 kgs. हाँ, कपड़े पहनना भूल गया क्या? देखिए आजकल ये जॉन इब्राहिम के साथ बड़े बड़े हिट्स दे रहे हैं, तो उनके तरह Yeah, बहुत फिट हो गए हैं। So I think John is making him work out a lot. that's one positive thing that John can do is get him fitter. But amazing, yeah. Milap has just been this guy. No, he's Really he's amazing. done so well for himself, and well deserving, yeah. Fantastic. Yeah. What a lovely guy. And Nikhil I heard Gonzalez that is also here. he's coming up with series of videos now. Acha, what is that series of videos? What happens in that? I don't know. You know the timing that I was talking about? That's what I'm talking about. आपने इस वक्त live witness किया है the magic of Ritesh Deshmukh. No. There's so But many people who've come here. There's Nikhil Gonzalez. There is hey Nikhil, Milap. my God, Apna. How are you, Nikhil? He just made a You know, fantastic show called Hasmukh. Netflix पर आप देख सकते हो। देखा आपने? I know. मैंने उसको बोला तूने मुझे कास्ट नहीं किया. You could have had Deshmukh as Hasmukh. ओह, अच्छा उसने मुझे कास्ट किया है by the way. Yeah. I'm the soul of Hasmukh. Wow. नहीं, he's done a great job and the show has done very well. Please everybody No, go out he's there. wonderful. Yeah. It's Okay, wonderful. you know, Ritesh, I want to talk about the whole fact about jumping from jumping. I mean, I think as an actor, somewhere I understand this, that when people say, how do you do so much of those comic stuff and at the same time go ahead and do an action-packed film as a producer director and then go and do a baghi. I mean, the change in mind and the change in your physical frame also. I can see physical frame से बात हो रही है तो आपका जो बाल है, वाह वाह, ये क्या कर दिया आपने? ये actually मैं बहुत I just decided I cut my hair and then I colored it absolute blonde, platinum rather, and अभी ये उग रहा है, so let's see how it goes now. No, it's looking really nice. So, but you know, जहाँ तक हम लोग बात like कर रहे हैं कि how does one shift? I think Milap is here and I hope he's here. He would agree that it's all about the writing because Milap, as a director, has written comic films like Masti and Housefuls. At the same time, when he's written Ek Villain, where I was the villain, of course, and in Marjawa he gave me a villain's role. So, by the way, Ek as Villain an is your highest grossing film, huh? While I was kind of reading up a little Sorry? bit. Ek Villain is your highest grossing what film. highest grossing film that I have been part of? It's Ek Villain. It would be Houseful 4. You think so? Yeah, Houseful 4 did 200 crores, Ek Villain 107 crores. Oh, okay. And after My that bad. is the Total Dhamal, which was 157 crores or something like that. So, Wow. but up there. So yeah, tell me So, about that. So it's a writing so I was just saying that, when one does different films, I think after some time actors get used to it. The most difficult for me to get in and get out was Ek Villain because it was difficult mentally to think that you can kill someone. Marjawa was slightly, I mean, he was vertically challenged, but he was larger than life. Ek Villain was a very real guy. So that made it. I'm sorry, I'm losing you for a second out there, huh, Ritesh? Yeah, sorry. Okay. No, I said Ek Villain was थोड़ा रियल था मेरे लिए राकेश महाड़कर का किरदार, क्योंकि वो आपका प्यून हो सकता है, वो आपका ड्राइवर हो सकता है, वो आपका प्लम्बर हो सकता है,
और आपको पता नहीं कि आपके इर्द गिर्द वो घूम रहा है और वो सीरियल किलर है. सो दैट मेड हिम कि वो क्राउड में गुम जाएगा. हम्म. पर मरजावा का जो कैरेक्टर था, हालांकि वो 3 फुट का था, लेकिन ही वुड स्टैंड आउट विथ हिज एरोगेंस, विथ हिज स्वैग. तो The first तो promo, जब the first look of that Marjava, I remember meeting Milap. I don't know if I messaged you. Sorry, but my God, yeah, that impact was something else. I mean, do you agree with me? You step away from that and look at it. सिर्फ एक promo के तौर से, I thought it was one of your most no impactful promos. no but I think all credit goes to Milap for conceiving it that way, and he was kind enough to offer it to me. But when you talk about कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि करियर में आपने क्या किया, मैं 15-16 साल से काम कर रहा हूँ. तो apart from acting with 2003, so apart from acting with so many wonderful people, कि मैंने एक्शन फिल्म में भी की, रोमांटिक फिल्म में भी की, एक फिल्म में मैं लड़की भी बना हूँ, मैंने बौने की भूमिका भी की, फिर विलन भी कर चुका हूँ मैं, फ्रेंचाइजीज का भी हिस्सा रह चुका हूँ मैं. सो दैट वे व्हेन यू लुक एट इट, it's just a wonderful journey. It's a wonderful journey. और एंड इट्स अ वंडरफुल जर्नी एक इंसान के लिए जिसने कभी नहीं सोचा कि उसको पहली फिल्म के बाद दूसरी फिल्म मिलेगी. मतलब मुझे पहली फिल्म नसीब से मिली, दूसरी फिल्म मुझे पता नहीं मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. How did you get the first film? How did I get the first film? Strangely मैं कॉलेज में था, मैं आर्किटेक्ट था, मेरा लास्ट ईयर था, और उस वक्त मैं डिजाइन कर रहा था, एक अपनी थीसिस के लिए काम कर रहा था, जिस पर आर्किटेक्चर थीसिस में लास्ट ईयर से आप थीसिस पे काम करते हो, एक प्रोजेक्ट लेते हो और उसके बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, वो प्रोजेक्ट आप किस तरह एंड डिजाइन तक लेके जाओगे आप, व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड दैट. और ये बात है 2000 की, 20 years ago. और उस वक्त टीवी वॉज बिग बूम, एकता कपूर और इन द रूस. मुझे लगा कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक सेंटर जहां पर आप टेलीकास्ट भी कर सकते हो, शूट भी कर सकते हो. सो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टेलीविजन सेंटर, वो सब काम था. एंड आई हैड मेट सुभाष घाई साहब, who was a dear friend of my father, and I asked him that I just want to visit studios, क्योंकि मैं तो पॉलिटिकल फैमिली से, मैं कभी फिल्म स्टूडियो गया नहीं था. तो इस तरह आ जाओ ये देखो, इधर देखो. तो उन्होंने एक दिन मुझे शूटिंग पे बुला लिया. अच्छा. और मैं उदयपुर चला गया 2 दिन के लिए, आजा शूटिंग देख ले. कौन सी फिल्म? और इट वाज ग्रेट, यादें. And it was great to see Hrithik Roshan. I mean, he's a superstar today, and he's a superstar then also, because after his first film तो बकायदा दोस्त हैं catapulted to. Point ये है कि उस वक्त you must be a fine boy. No, it was just wonderful to see Hrithik Roshan on the set, and Kareena Kapoor was there, Bebo was there, and Jabuda was there. So I met all of them. It was wonderful as a film buff to get to watch live shooting. Absolutely, I understand that. Yes, absolutely. Sorry, थोड़ा कट हो रहा है. तो दो दोस्ती भी हुई. And then I went to New York to work. लेकिन वहां पर जो DOP थे, जो cinematographer थे, कबीर लाल साहब, he saw me there, और उनको लगा कि मैं एक्टर बनना चाहता था, इसलिए सेट पे आया. हालांकि मैं नहीं बनना चाहता. और उसके 1.5 साल बाद he contacted a friend of mine who was an assistant director to say कि अरे we are looking for a new boy for a South Indian remake, और just ask him if he's interested. Because they had almost locked everything else, just they are waiting for a hero. और उस वक्त क्या हुआ था, the film was actually signed by some Genelia, sorry, I don't mean to jump the gun, लेकिन Genelia was finalized for this part. You were the only one not finalized. So Genelia was finalized and the actor also was finalized. उसमें क्या हुआ था कि after the actor was finalized, the actor had a other film to do, so he went to sign that film, and he said, I'll do this as my second film. And they wanted a new boy, so they started looking for someone, and then I went and they liked me. उनको मैं पसंद आया, मुझे उनकी स्क्रिप्ट पसंद आई, और फिर मैंने फिल्म कर ली. बट देखो ना, वो फिल्म करने से
वो चॉइस मेरी पूरी जिंदगी तुझे बदल मेरी दी, कसम, क्योंकि तुझे फिर मेरी मुझे कसम। करियर मिल गया। तुझे मेरी कसम, मुझे करियर मिला, जिस लड़के के साथ काम किया उससे शादी हुई, आज दो प्यारे बच्चे हैं। सो आई जस्ट गॉड फील ब्लेस यू मैन। समटाइम्स कहीं से एक ऐसी चीज आती है जहां पर आपको लगता है, एंड माय मदर सेड कि मैं करूं या नहीं करूं, आई एम नॉट टू श्योर बिकॉज माय फादर वाज अ चीफ मिनिस्टर दैट टाइम। और मैंने अपने पिता को कहा था कि यू नो 90% ऐसा हो सकता है कि फिल्म ना चले, और 98% ये तो पकड़ के चलो कि मेरा काम अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब लोग लिखेंगे तो ये नहीं बोलेंगे। Oh man, this network, यार. What an interesting conversation we're having right now. थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है. Let's just wait for Ritesh to come back right away. Ritesh, if you can hear me, you're stuck. हाँ, I think he's come back. कैन यू हियर मी? तो Ritesh, उन्होंने sorry, I lost you. You were at 98%. ये होगा कि हाँ, तो 98% ये होगा कि फिल्म नहीं चलेगी। लोग मुझे मुझे नाम नहीं देंगे, फिल्म ये नहीं कहेंगे रितेश देशमुख बुरा है, वो यही कहेंगे कि विलासराव देशमुख का बेटा बुरा एक्टर है और उसको एक्टिंग नहीं आती, चीफ मिनिस्टर का बेटा क्यों ये सब किया। तो ऐसे आपको ही सुनना पड़ेगा, है ना, आपके नाम पर आएगा वो, मेरे नाम पर नहीं आएगा, क्योंकि मेरी पहचान ही नहीं है। तो ही सेड, ही टोल्ड मी अ ग्रेट लाइन दैट टाइम। ही टोल्ड मी कि तू अपने नाम की फिक्र कर, मैं अपने नाम की, आई टेक केयर ऑफ माय नेम, यू वरी अबाउट योर wow. नेम। So that I gave me love a lot that. of confidence, and it was just wonderful that Tujhe Meri Kasam eventually became such a memorable film. और Great. महाराष्ट्र में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं, थिएटर में चलती है, and it's just amazing. You know, I want to tell you, okay, I saw this film a lot later. Okay, I saw it only recently while we were which one? working. Yeah. तुझे Oh मेरी wow, कसम. really? Yeah, I only saw it Wow, recently. okay. Oh wow. And the purity and the freshness, I think films like that, a lot of these little unexpected gems are the ones which touch you. Oh wow, sweet. Acha, before we go on to another thing, I want to address something if you're comfortable with it. It just give me an idea while you were talking about, your amazing dad. Okay, a lot of people must have very easily presumed that everything that has happened to you, your initial part of your career, was due to your father. You know, that's a burden. That's a burden. Tell us about it, because even I think ये एक चीज होती है जो लोग जानते भी हैं कि नहीं यार, इस बंदे ने अपने टैलेंट पर, अपने मेहनत पे काम किया है, लेकिन फिर भी हमें नहीं कहना है क्योंकि हमारे लिए तो इजी है कि हम बोलेंगे जो बोलना है. So I know you have a care the hell attitude about these things, but I'd like to understand your point of view on the fact that people say it's because of Shri Vilas Rao Deshmukh. नहीं, I'll tell you what, जब भी लोग उस वक्त बोलते थे कि सीएम का बेटा है, पिता के वजह से फिल्म मिली है, करियर में उनका हाथ है, कुछ कुछ धारणाएं जो लोगों की होती है, आप उसको चेंज नहीं कर पाते। कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं उनकी जगह पे होता और मैं देखता कि एक सीएम का बेटा फिल्म कर रहा है, तो मैं हमेशा, मुझे भी यही लगता कि शायद इसके पिता ने कुछ सेटिंग की होगी तो इसको लगा। तो आई डोंट टेक इट पर्सनली, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी है कि एक धारणा ही हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि आपको हमेशा लगता है कि अगर पॉलिटिकल फैमिली से है तो कुछ इन्फ्लुएंस लगा के आया है, एक वो है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। शायद उनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही सोचता। पर मुझे इस बात का गर्व है या फक्र है कि 17 साल के करियर में, एंड माय फादर पास्ड अवे 18 साल, सो माय फादर पास्ड अवे अबाउट 8 years ago. So for 10 years while he was around and while मैं एक्टर था, एक भी प्रोड्यूसर को, एक भी डायरेक्टर को, एक भी राइटर को उन्होंने कभी फोन नहीं किया, कभी नहीं बोला। एंड आई टेक दैट एज इमेंस प्राइड। अब मैं ये जो बोल रहा हूँ उस पर कितने लोग विश्वास रखेंगे नहीं रखेंगे वो दूसरी बात है, बिकॉज क्या है कि ये ऐसी बात नहीं है कि मैं हर एक को बताऊंगा नहीं ऐसा ऐसा है, पर डीप डाउन इन माय हार्ट आई नो कि
my father was very proud of the fact कि एक ऐसे लाइन में मैं गया जिसका मुझे ABC नहीं पता था, मुझे सेट पे कैसे खड़ा होना नहीं पता था, मुझे कैमरे के सामने क्या करना नहीं पता था। पहली बार मैंने मेकअप लगाया जब मैं सीन दे रहा था। तो टू एंड ऑल्सो आई फील एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स कि उन्होंने अपने बच्चे को एक अननोन टेरिटरी में जाने दिया। यू नो, ओके फाइन, गो अहेड, यू विल स्टम्बल, यू विल फॉल, उठोगे, सीखोगे। एंड आई लर्न ऑल दिस फ्रॉम माय फादर दैट मैंने लिया है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। क्या होता है कि बहुत बार जो होता है ना कि अच्छा आप बोलते हैं रितेश ने, आई हैव गॉन थ्रू अ करियर जहां पर मुझे रिव्यूज मिले थे कि यार रितेश देशमुख इज अ वुडन एक्टर, इसको एक्सप्रेशन नहीं आते हैं ये। Really? हाँ, I've got For what? there was a review for a film in Nach saying Ritesh Deshmukh is as irritating as a flickering tube light. तो मुझे रिव्यू समझ में नहीं आया, तो मैंने राम गोपाल वर्मा को फोन किया, रामो जी व्हाट इज द मीनिंग? ही सेड रितेश आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, लेट मी कॉल दैट रिव्यूअर एंड आस्क हिम। So he went and he called him and he asked him and he called me back. I asked that reviewer, he said that in the climax you were flickering your eye, blinking your eyes too much. And that was irritating him. So I said, sir, अब क्लाइमैक्स सीन क्या था कि अभिषेक बच्चन एक जगह पर है, अंतरा माली दूसरी जगह पर है, और दोनों के बीच में सीन चल रहा है, और मैं सिर्फ टेबल टेनिस की मैच की तरह देख रहा हूँ कि अच्छा ये ठीक है, आई एम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सीन। और मैं ऐसे कर यहाँ ब्लिंक किया, उसको देखा, ब्लिंक किया, सोचा, ब्लिंक किया, देखा। अब तो जब भी मेरा क्लोजअप आता था, आई थिंक आई वाज ब्लिंकिंग। तो no, which is fair enough. No, I understand this. What I'm trying to tell you, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हालांकि उस वक्त मुझे बुरा लगा, लेकिन उसकी वजह से उसके बाद आई मेक श्योर कि किसी भी शॉट में अगर मैं ज्यादा ब्लिंक करूँ तो मैं कम करता हूँ, क्योंकि आप सीखते हो, आप यू नो सी एवरी क्रिटिसिज्म इज देयर टू इम्प्रूव, राइट? सो हालांकि उस वक्त शायद मुझे बुरा लगा होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं यार ये सही है। मुझे याद है कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख खान। यस। और जब भी मुझे छुट्टियां होती थी तो मैं आई नो करण जौहर के मैं आउटडोर पे गया था फॉर 15 days बिकॉज मैं काम नहीं कर रहा था, आई वाज एन एक्टर। तो एक एक्टर अपना काम छोड़ के फ्री टाइम में दूसरे के आउटडोर पे गया है, वो मैं हूं। एंड आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम। एंड व्हाई आई हैव गॉन? बिकॉज करण वाज अ डियर फ्रेंड, सो वाज शाहरुख, ही वाज वेरी ग्रेशियस। मैं सेट पर जाकर बैठता था टू जस्ट सी हाउ दे डू इट, यू नो, बिकॉज दे आर वंडरफुल एक्टर्स। सो फॉर मी मैं किसी क्या कहते उसे स्कूल में नहीं गया था टू लर्न। हालांकि यू नो आई वेंट टू ली स्ट्रासबर्ग, बट उस वक्त मैं एक्टर नहीं बनना चाहता, तो माय पर्सपेक्टिव वाजंट टू बिकम एन एक्टर। बट व्हेनेवर आई सी मेरे सेट पर आज भी, चाहे वो अभिषेक बच्चन हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे आप हो, चाहे माधुरी जी हो, या अजय देवगन हो, या सलमान खान हो, अमित जी हो, आई लाइक टू जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व व्हाट दे डू यार, कि इन्होंने पॉज कहाँ लिया है, इन्होंने क्या सोचा है, कितने कैजुअली किया है। सो इट्स दे इनवेरिएबली दे टीच यू सो मेनी थिंग्स, यू नो। मुझे याद है मैं मस्ती कर रहा था फर्स्ट पार्ट, और एक आउटटेक में आफ्ताब ने एक एक्सप्रेशन दिया था और मुझे बहुत पसंद आया, बट अनफॉर्चुनेटली वो फंबल की वजह से टेक यूज नहीं किया, तो उसने वो एक्सप्रेशन चेंज कर दिया। तो आई केप्ट दैट एक्सप्रेशन इन माय माइंड एंड आई यूज्ड इट इन सम अदर फिल्म, इन सम अदर रेफरेंस। तो यू यूजुअली एज एन एक्टर कि आपके बैंक में रहता है एक्सप्रेशन, ये अच्छा, ये रिएक्शन अच्छा था, ये इसने अच्छा रिएक्ट किया है। और I know it. So you know what, there's so many things that I want to kind of summarize here कि ये एक चीज है which everybody should understand, that no matter how successful, how good you are, somebody like a Ritesh Deshmukh and even an Amitabh Bachchan I've heard about sits and observes. As an actor बहुत जरूरी होता है कि आप observe करो और ये अपने दिमाग पर बात नहीं जाने दो कि यार मैं तो हूँ, बहुत हूँ। You know, I am going to take a second. अमित जी के बारे में आपने कहा, I just want to tell you one fantastic thing about Amit ji. I was doing a film Aladdin with him, जो जैकलिन की पहली फिल्म थी, सुजॉय घोष के साथ कर रहा था मैं।
और एक सो बेसिकली जैकलीन ऊपर अपने हॉस्टल में थी और मैं और अपने जीनियस के साथ मैं अलादीन मैं पत्थर फेंक रहा था और एक सीन था वहां पर और आमिर जी के साथ मेरी ये दूसरी फिल्म थी पहली मैंने की थी रामू जी ने डायरेक्ट की थी डरना जरूरी है दैट वाज अ हॉरर फिल्म एंड आई वाज ऑब्वियसली एक्साइटेड कि अलादीन जैसे एक आइकॉनिक कैरेक्टर आप प्ले करने को मौका मिल रहा है और बिल्कुल फिर उसमें आमिर जी के साथ आप काम कर रहे हो बिल्कुल। और पूरी फिल्म में ही नेवर टोल्ड मी एनीथिंग एज एन एक्टर एज अ को एक्टर कि ये सीन आपको ऐसा करना चाहिए हाउ अबाउट दिस अगर इसको ऐसा बोलो तो ऐसा नेवर सच अ लेजेंडरी एक्टर कभी नहीं बोला उस दिन उन्होंने मुझे कहा मैंने 2 टेक दिए उस तीसरे टेक में उसने कहा रितेश इफ यू डोंट माइंड कैन आई टेल यू समथिंग आई सेड यस ये 2 वर्ड्स जिस तरह लिखे हैं आप इस तरह बोल रहे हो इसको अगर शिफ्ट कर दो आप इफ यू थिंक इट्स राइट तो इसका मीनिंग बदल जाएगा एंड आई फील इट माइट इंप्रूव बट यू फील फ्री यू मस्ट बी कंफर्टेबल व्हाट यू डूइंग इज वेरी नाइस इसको शिफ्ट विद कर दो सच मीनिंग बदल ह्यूमिलिटी। जाएगा हाँ एब्सोल्यूट और चेंज करने के बाद यू रियलाइज दैट द मीनिंग एंड द इम्पैक्ट वाज सो डिफरेंट दैट्स द ओनली वन डे ही टोल्ड मी समथिंग बोलने का मतलब है कि जब आप एक्टिंग कर रहे हो ना यू नीड टू गिव स्पेस टू अ को एक्टर हाउएवर गुड बैड अगली ही इज एंड दैट one learns from Amit ji and then I took that thing from him that day and looking forward I never interrupted any of my co-actors to tell him So what to do or whatever. no, but did Aladdin was before Jaane Kahan Se, right? Yeah. So you did this exact thing with me on set. The scene I did. was, I think it was our scene in our bedroom when we're both lying down together and we're reminiscing about something. My bedroom, And you, not our bedroom. We didn't have our bedroom in the film. your It was bedroom, my yeah. bedroom. We weren't a couple. मैं पर्सनल बातें निकल गई, मतलब मेरी मुंह से निकल गई मेरी फैंटेसी। But you did that exactly. What Amit ji you just described it with you. आपने बिल्कुल मेरे साथ वही किया था, and that took the scene to a different level. And the way you told me, Ritesh, I really appreciate it because the way you told me that listen, I think this is fantastic, but if you try and tweak, ये थोड़ा सा tweak कर दो, this will take it. Maybe it will do good. Let's try it. And I appreciate that, and that scene was kept in the film, and it just took it to the different level. So I see कि आप क्या कह रहे हैं कि you learn from somebody and then you share it with somebody, but आप इसे एक भाषण नहीं देते हो. You know, that's really awesome. Look, I'm going to take a second, and I would request you कि आपके बहुत सारे ये जो messages आ रहे हैं, would you like to address them? Vikram Yeah, Fadnavis sure. is here, and he's saying hello to you. Hey, Vicky, what's up? Vikram, I have to tell you, I'm watching your film with Genelia soon. मी फोन बघणार आहे पिक्चर मला चित्रपट पाहायचा आहे आणि नक्की पाहणार आहे I love you. कौन सी film? You know Vikram Fad, he's fantastic. Yeah. I love him. Oh, I've had the opportunity of working once with Vikram on a film called Salame Ishq, which he was the absolute master designer, the look coordinator for that film, and I've had an absolute honor of being able to be styled by Vikram, and unfortunately I haven't met or spoken to. It's really nice that through this medium we can say hello. But what film is this, yeah? Ritesh, Vikram की कौन सी फिल्म है? जरा बताइए सबको उसके बारे में. No, he's directed the film. 2 films he directed himself. He directed a Marathi film, and I'm really looking forward to watching it. And Wow. Good luck, Vikram. दूसरा क्या है कि Vikram is a very sensitive person, and that comes across in his writing and the way he has done. And I'm really excited to watch this film. Well, good luck, Vikram Fadnavis. Everybody go and follow him and check it out. But can you just address some of your fans, please, Ritesh? Okay, yeah. So Shubham, hello. Patel, Harsh, hello. Arjun, सगळ्यांना नमस्कार बाबा. Ronnie, yes, Ronnie घर पे होगा मुझे पता नहीं. Mayank, thumbs up to you. Meena, अफगानिस्तान से all बहुत hearts सारे in my fans आ रहे eyes. हैं. और सबको ढेर सारे बिस्ता and Omi and all the lovely hearts. Thank you so much. You guys have been amazing with everything that is. Sorry, we lost you for 1 second.
नमस्कार 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 रंजीत। यस, कोरोना हारेगा, जरूर हारेगा। अगर हम घर पे बैठेंगे तो वो हारेगा। ये पहली लड़ाई है जिसके लिए लड़ने के लिए बाहर नहीं, घर पे बैठकर लड़नी पड़ेगी हम सबको। और मैं बताना चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स हम लोग अभी मतलब जस्ट बिफोर वी लीव वी जस्ट वांट टू टेल यू ऑल के ये कोरोना एक ऐसा टाइम हम सब पर आया है। क्या है कि सम ऑफ अस आर लकी कि हम लोग अपने घर पे हैं, सुरक्षित है। बट बहुत सारे लोग हैं बाहर जो अपने माइग्रेंट लेबर्स है, वर्कर्स है, जो अपने घर वापस जा रहे हैं। एंड आई होप एंड प्रे टू गॉड दैट दे ऑल सेफ और इनके ट्रैवल में कोरोना स्प्रेड ना हो। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, आप काम के लिए दूसरे स्टेट में आते हो, फिर ऐसी बीमारी आ जाती है जिसकी वजह से काम बंद हो जाता है, आपका पूरा परिवार लेकर आपको वापस गांव जाना पड़ता है। एंड इट्स नॉट इजी। माय हार्ट रियली गोज आउट टू ऑल ऑफ देम। और साथ ही में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पुलिस है, चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, इतर राज्यों की पुलिस हो, वो सारे लोग हमारे सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। वो बाहर इसलिए है ताकि हम सेफ रह सके। वो अपने घर पे जाकर अपने परिवार से नहीं मिल सकते। और टुडे इज इंटरनेशनल नर्स डे आई थिंक। तो लेट्स सल्यूट एवरी हेल्थ वर्कर एंड नर्सेज आउट देयर जिन्होंने अपने परिवार की, अपने जान की परवाह ना करते हुए दे आर ट्रीटिंग ऑल द कोविड पेशेंट्स। क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं हम लोग बाहर जाएंगे तो हमको कोविड हो जाएगा, लेकिन उनके बारे में सोचो, वो तो हॉस्पिटल में उनको पता है कि सामने वाले को कोविड है, कोरोना वायरस है, फिर भी वो जाकर उनको ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उनके इस योगदान को समझे, रिस्पेक्ट करें और जितना उनको श्रेय देना है उतना कम है। क्या हम ऑफ कोर्स वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी, और जब भी सरहद पे कुछ ऐसी चीजें होती है और आर्मी कुछ करती है और हमारे लड़ती है तो हमको फक्र होता है कि ये हमारी आर्मी है। आई थिंक आज की लड़ाई जो डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स और नर्सेस लड़ रहे हैं अलॉन्ग विद आवर कॉप्स एंड म्युनिसिपल ऑफिशियल्स, शहर को साफ रखना, गटर नाली साफ रखना, इन सारे चीजों के, ये हमारी आज की आर्मी है। और आई थिंक वी ऑल नीड टू बी आउट देयर, हेल्प देम, सपोर्ट देम। And Ritesh, I want to take this opportunity to thank you and your family, जिन्होंने हर मुसीबत के वक्त पे बहुत मदद की है लोगों की। एंड आई नो कि आप इसके बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं उसे रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सबके तौर से टू यू एंड द एंटायर देशमुख फैमिली, योर लवली ब्रदर्स, Dheeraj also, who I personally know, lot of respect for जो आप सिर्फ लातूर के लोगों के लिए नहीं लेकिन पूरे देश के लिए जो करते रहते हैं। But before I let you go, Ritesh, I just want to say again that thanks to you, I've had such amazing experiences. You've brought only happiness in my life. जब भी मैं आपके बारे में सोचता ही हूँ तो मेरे दिल में, मेरे जहन में बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। I adore you. I adore your family, and I just want you to know that आप चाहो या ना चाहो, ये लॉकडाउन जब खत्म होगा मैं आपके साथ बहुत वक्त गुजारने वाला हूँ। Then of course we have to meet because our kids have to meet. Our kids have to meet, and lots of love to your beautiful wife, Genelia. Yeah, your beautiful wife too. Lots of love. Beautiful people. And I want to also say that thanks to you, I met a very, very amazing human being who you've learned everything in your life from. Very shortly, but because of you, I met your father, Shri Vilasrao Deshmukh, once at, I think it was your wedding. It's a memory I cherish. Thank you. Thank you. Ritesh, before I go, I just want to tell you that बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो ये interview देखें, and it goes to a lot more people. So if it's okay with you, I'd like to request you to kind of place this on your wherever, Instagram or IGTV. Sure. Or how do I do that? How do I do that? I'll probably send it to you, and at the end you might get a Please send me. I don't know. Yeah, sir. Yeah. But Ritesh, I really appreciate this. God bless you. Lots of love. Thank you. God bless you, man. इतना मजा आया आपसे बात करने में. Really. Thank you. Lots of love. I love you, Vishal. Take care, man. And thank you all of you who joined. Bye. So there you have it, Ritesh Deshmukh, one of my favorite people in this entire world.
and you saw that there's so much love and respect for him. Thank you so much, Rockstar Ritesh.